students, how are you? In our today's class, I am going to teach you elective English, the literary petals. Your section is literary petals, the song of India. In your today's elective English lecture, I will teach you the chapter number 9th, the song of India from book The Literary Petals. So firstly we will pay attention on the main theme of this chapter. This poem is about Mother India, the song of India, as it clear from its heading. So dear students, poet wants to sing a song of Mother India. जो पोइट है, जो कवि है, वो अपनी मदर इंडिया के लिए गाना गाना चाहता है. So which are the positive points which the poet wants to mention in his Mother India song? So its natural beauty. As we know, it goes without saying that India is a cultural country. Its natural beauty is so vast that, and it is full of so enormity that we cannot describe it in words. So the next point is there are so many great songs in it, and the progress is in material level, in science, in technology is incredible. Along with these positive points, there is also the presence of minus points. Which are the minus points? Beggars and lepers. Beggars भिखारी, lepers जो कुष्ठ रोगी होते हैं, and poverty and ignorance. All these things will translate into dehumanized men. So which is a stain brought in the cultural progress of India. So dear students, please pay attention on the chapter as I am going to read this chapter. The poet wants to sing a song of Mother India. कवि जो है वो अपनी भारत माता के लिए गीत गाना चाहता है. He wants to sing of her natural beauty, her great songs and of her material progress. कवि जो है वो उसकी कुदरती सुंदरता के लिए, उसके महान गीतों के लिए और उसकी जो भौतिक प्रगति हुई है उन सभी के रिलेटेड गीत गाना चाहता है. वो इन सभी तथ्यों को अपने गीत में शामिल करना चाहता है. She has the Himalayas with its snow-covered peaks. अभी भारत के पास क्या है? हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो बर्फ के, जिसकी चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं. The three seas wash her shores. इसके इर्द गिर्द 3 महासागर हैं जो इसके शोर्स को, इसके किनारों को वॉश करते हैं, निखारते हैं. She has her great temples cut out in rocks. चट्टानों के बीच बने हुए मंदिर हैं भारत माता के पास. She gave birth to great patriots, seers and prophets. भारत माता ने बहुत सारे महान पैट्रियट्स, देशभक्तों को, और प्रोफेट्स, महापुरुषों को जन्म दिया है. She has also made great progress in the field of science and technology. साइंस, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी इसने बहुत तरक्की की है, बहुत प्रगति की है, उन्नति की है. The poet asks the mother which of these things should he make the subject of his song. अभी जो कवि है वो माता से, अपनी भारत माता से पूछता है कि इन सभी चीज़ों के बीच में से मैं किस चीज़ को, किस तथ्य के बारे में गीत गाऊं, किस तथ्य को मैं अपने गीत में शामिल करना चाहिए. The mother tells the poet that there are things which are worthy of greater attention and concern. वो तो जो बात थी वो सारी कवि के मन के विचार थे कि ये सभी चीजें जो हैं वो भारत माता के पास हैं. अभी भारत माता का रिप्लाई क्या है? भारत माता कवि को कहती है कि
यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी और ध्यान देने की, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। वो कौन सी चीज़ें हैं देखते हैं अभी। She says that her streets are swarming with beggars and lepers. भारत माता क्या कहती है कि उसकी जो गलियां हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, वो भिखारियों के और कुष्ठ रोगियों के झुंडों से भरी पड़ी हैं। Her beautiful face is littered with filth and dirt. उसका जो चेहरा है, भारत माता का जो चेहरा है, वो इन भिखारियों और कुष्ठ रोगियों के झुंडों के वजह से उसकी धूल से गंदा हो गया है, लिटर हो गया है। Her teeming million have to toil hard all their lives. उसके जो मिलियन बिलियन लोग हैं, उन सभी को अपना जीवन जीने के लिए बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है। They have wrinkled faces. उनके जो चेहरे हैं, जो उसके भारतीय हैं, जो उसके नागरिक हैं, उनके चेहरे जो हैं वो झुर्रियों से भर गए हैं। बहुत ज़्यादा उनके चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं ड्यू टू हार्ड वर्क, ड्यू टू दिस पॉवर्टी। There is widespread poverty and ignorance. जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी फैली हुई है और अज्ञानता भी है। There has been material advancement, no doubt. बिना शक के, बिना संदेह के भौतिक प्रगति हुई है। But it has also dehumanized man. परंतु भौतिक प्रगति के साथ साथ मनुष्य जो है वो अमानुषिक बन गया है। इसका मीनिंग कि उसकी जो भावनाएं थी, उनमें प्रगति नहीं हुई है, उनका लेवल लो हुआ है। सिर्फ मटेरियलिज्म ही प्रगति पर है, मटेरियलिज्म ही डेवलप हो रहा है। देयर आर स्ट्राइक्स एंड क्लास वार्स। यहाँ पे हड़तालें हो रही हैं, हड़तालें हैं और एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ झगड़ा है। The atmosphere is charged with violence and hatred. यहाँ का जो वातावरण है, वायुमंडल है, वातावरण है, वो हिंसा से और नफरत से भरा पड़ा है, चार्ज हो रहा है। It is against these evils that the Mother India wants the poet to sing. अभी इन सभी बुराइयों के होते हुए, बुराइयों के अगेंस्ट जाकर भारत माता क्या चाहती है कि कवि उसके लिए गीत गाए। Though she is unhappy over the darkness that has engulfed her, she is hopeful of a bright future. भले ही वो उदास है, खुश नहीं है, किसके लिए? ये जो अंधेरा है, जो डार्कनेस है, जिसने भारत माता को एनगल्फ कर लिया है, अपनी पकड़ में ले लिया है, इसकी वजह से वो खुश नहीं है। फिर भी वो क्या चाहती है कि उसे एक होप है, एक आस है कि उसका आने वाला जो कल होगा, भविष्य जो होगा वो अच्छा होगा, ब्राइट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर ऑफ the literary pattern section. So you will learn the short answer comprehension questions of this chapter along with long answers. So thanks, have a nice day.